Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce session number 8 of Internal Trade. In last session I completed two different type of the big shops, that was franchises and supermarket. So we completed already the big shops. Under that, departmental stores, chain stores, mail order shops, and two in the last session, that was the franchises and supermarket. Now the last big shop under the fixed shop, that is the shopping mall. Shopping mall is developed due to change in departmental stores in modern time. So you can say the shopping mall is the expanded form of the departmental stores, or the particular developed form of the departmental store. The construction of the shopping mall is larger than supermarket. So supermarket is a simple thing where customers can take the benefit of the different type of the goods at a reasonable price, right, in large quantity, or somehow the different type of the dealers are purchasing the goods from this type of the supermarkets, and all the types of the goods related to the daily requirement is sold in supermarket. But here in shopping mall is quite larger than the supermarket, right? So in which many small or big shops are commenced or established under the ownership of a single person or more than one person. So shopping mall is that type of the big shop where various type of the small and means many types of the or many small or big shops are started, commenced or established. और उसके जो ओनर होते हैं, द ओनरशिप मे बी इट इज़ नॉट ओनली द सिंगल पर्सन, समटाइम्स इट इज़ मोर देन वन पर्सन. तो ओनरशिप ऑफ अ सिंगल पर्सन और मोर देन वन पर्सन, राइट, बिकॉज वहाँ पर आपको ब्रांडेड चीज़ भी बेचनी है. लेट्स सी वेरियस टाइप्स ऑफ द ब्रांडेड गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स एंड लग्जरियस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर्स टूगेदर एट द सेम प्लेस. यानी यहाँ पर क्या होगा, द सेलर विल सेल द डिफरेंट टाइप ऑफ द branded goods, right? So because of that one you can easily purchase from one place. So branded goods, that is the products, are easily available, which is mostly daily requirement or luxurious products, and most of the customers are purchasing all the things together at the same place. तो सब कुछ यहाँ पर आराम से मिल जाता है. Efforts are made to attract the customers through various types of the proposals of sales promotion. Here the customers will get different type of the promotion of the particular sales, right? So यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट है मे बी अवेलेबल इजीली है, लेकिन वहाँ पर भी उनको बेनिफिट होगा प्रमोशन का, क्योंकि प्रपोजल्स जो होते हैं प्रमोशन के लिए वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं. ये मोस्टली ये शॉपिंग मॉल में है. दैट इज़ द अट्रैक्शन पॉइंट इन शॉपिंग मॉल. यानी ये सब चीज़ शायद डिपार्टमेंटल स्टोर में ना भी हो, चेन स्टोर में ना भी हो, फ्रेंचाइजीज में तो कोई पर्टिकुलरली ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि टोटली फ्रेंचाइजीज एक ब्रांडेड है, वो ब्रांड नेम है और एक ट्रेडमार्क है, तो उसके नाम से ही वो चलेगा. लेकिन यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, तो उसके हिसाब से शायद एफर्ट्स करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. सो कंपटीशन अमॉन्ग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस प्रोड्यूसर इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉपिंग मॉल. तो याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है विद इन द पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल ऑफ द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सेम टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स. यू नो इकोनॉमिक्स में हम सीख चुके हैं, आपको इनकी इन्फॉर्मेशन भी दे चुकी गई कि हाउ दिस पर्टिकुलर कंपटीशन इज देयर एंड हाउ दिस पर्टिकुलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर वर्क. सेम टाइप की जो चीज़ होती है, राइट, शेप, फॉर्म, यू नो दैट वन, आपको सब डिटेल है. तो ये प्रोडक्ट्स है, उसके प्रोड्यूसर्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे. सो कंपटीशन रहेंगे. तो सिंपल थिंग, कस्टमर्स हैव वाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिलेक्शन. सिंपल, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है, यानी शॉपिंग मॉल है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं तरह मॉल में कितनी भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो चॉइस भी मिलेगी. तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सिलेक्शन इज देयर. सो मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज रिफ्रेशमेंट हाउस, यानी नाश्ते के लिए आप जो थोड़ा बहुत ऐसे यूनिट्स होते हैं. एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भी होता है बच्चों के लिए फॉर ए चिल्ड्रन. वाईफाई इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑडिटोरियम एटसेट्रा आर अवेलेबल इन शॉपिंग मॉल. सो वी कैन यूटिलाइज दैट वन. अभी तो क्या है, लोगों का अट्रैक्शन करने के लिए ये शॉपिंग मॉल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूनिट भी खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बेनिफिट होता है. अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना है तो कंपटीशन लगेगी, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, राइट. शॉपिंग मॉल है तो
प्रमोशन भी उसका करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा है थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट हाउसेस खोल दो, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल दो चिल्ड्रन के लिए, टाइम जोन जैसा है हमारी सिटीज़ में, राइट। छोटी बहुत बड़ी सिटीज़ में ऐसे होते रहते हैं, तो फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर द पर्टिकुलर गेमिंग एंड समटाइम्स वाईफाई एंड ऑडिटोरियम, okay, so that is the common thing nowadays in shopping mall. So here the shopping mall is quite larger, keep in mind, than the particular supermarket, also is a developed form than the departmental store. So today we already discussed shopping mall, and the other points were already discussed in the last 2 sessions related to the big shops. तो यहाँ पर हम बिग शॉप के जो 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट एक्चुअली, डिपार्टमेंटल चेन, राइट, मेल ऑर्डर, फ्रेंचाइजी, सुपरमार्केट एंड शॉपिंग मॉल खत्म करते हैं। अब जो फिक्स शॉप के बाद पहले हमने देखा मोबाइल शॉप्स, बाद में देखा सेकंड टाइप उसका था फिक्स शॉप, अब तीसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द अदर मेथड्स। वी कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग। उसमें हम देखेंगे 1 by 1 2 or 3 डिफरेंट पॉइंट्स। Here it is, the third point under the retail trade, other methods of selling. Keep in mind, पहला हमने देखा मोबाइल शॉप, दूसरा हमने देखा द बिग शॉप्स, एंड ये तीसरा है अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग। उसमें फर्स्ट वन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, AVM, राइट। ये नाम आपके लिए नया नहीं है, हमारी कंट्री में अब तो ये लॉन्च हो चुका है, लेकिन इट वॉज ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर सो मैनी ईयर्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. This is one kind of automatic machine for selling products. If you want to sell the products with the use of the machines, automatically you can sell your products, right? यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो मशीन से आपको कॉइन या वगैरह कुछ भी, वॉट एवर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कॉइन्स आर देयर स्पेसिफिकली उसके लिए बनाए गए हो, उसका यूज़ करके, या समटाइम्स सम ऑफ द कूपन्स आर अवेलेबल, राइट, टू यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ द AVM, राइट। दैट इज नेचुरली हमारी कंट्री के लिए कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, राइट। लेकिन कई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यहाँ से अवेलेबल होती है, मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, देखते हैं हम बाद में, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन है सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए, बाय विच रिटेल सेल इज मेड। तो इससे ओनली यहाँ से जो भी AVM से ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है उससे मोस्टली रिटेल सेल हो सकता है। प्रोडक्ट्स आर अरेंज्ड इन एडवांस इन दिस मशीन। मोस्टली आपने देखा होगा ऐसे जो मशीन्स होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जो निकलता है वो पहले उसमें से डाला हुआ होता है, उसमें डाला होता है मशीन में, राइट। सो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द मशीन, इट इज़ ऑलरेडी एडवांस्ड अरेंज्ड इन दैट मशीन। कस्टमर हैज़ टू ड्रॉप द करेंसी, मोस्टली द कॉइन्स, राइट, करेंसी और कॉइन्स इन द मशीन टू परचेज प्रोडक्ट, लाइक न्यूज़पेपर। हमारी कंट्री में न्यूज़पेपर ऐसे अवेलेबल नहीं है, राइट, मोस्टली US UK में ऐसी सिस्टम है, लेकिन व्हेन यू विल एंटर इन द पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, दिस टाइप ऑफ द मशीन्स आर देयर इन द शॉपिंग मॉल, इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स और इन द रेलवे प्लेटफॉर्म्स, राइट, समटाइम्स मेट्रो ट्रेन्स आर देयर इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पर ये सब होते हैं। तो यू कैन एंटर द कॉइन्स एंड यू कैन परचेज द न्यूज़पेपर, समटाइम्स यस कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट है। आइसक्रीम, ये भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अब आगे आया है। कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, हमारी कंट्री में मोस्टली टी ज़्यादा होती है, राइट, वो भी लॉन्च हो गया है। सो जो भी प्रोडक्ट यहाँ मिलती है वो न्यूज़पेपर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या कॉफ़ी। हाउ मेनी कॉइन्स आर टू बी इंसर्टेड इन द मशीन इज इंडिकेटेड ऑन द मशीन। सो कॉइन्स या करेंसीज कितनी डालनी है उसमें वो उस पर लिखा हुआ होता है, राइट। समटाइम्स सम ऑफ द मशीन्स आर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर द कंपनीज, स्पेसिफिक कंपनीज। फॉर एग्जांपल कोटिंग्स के लिए कंपनी ने अपना खुद का मशीन बनाया हुआ होता है, तो उसमें उनके ही कॉइन चलते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू परचेज द कॉइन फ्रॉम द काउंटर एंड देन आफ्टर एंटर दैट और इंसर्ट दैट वन, राइट, इन दैट पर्टिकुलर मशीन एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। और समटाइम्स डायरेक्टली द prescribed or whatever the particular type of the work is there which is decided, that means coins are decided in advance। तो ये एडवांस में डिसाइड हुआ होता है, तो वो कॉइन्स को आप यूज इंसर्ट करना है और वो इंडिकेशन दिया होता है। सो द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कम्स आउट फ्रॉम द मशीन एज द कॉइन इज इंसर्टेड टू द मशीन। तो व्हेन यू विल इंसर्ट द कॉइन एज पर द इंस्ट्रक्शन और एज पर द पर्टिकुलर मशीनरी सिस्टम, वॉट एवर द प्रोडक्ट इज दैट विल कम आउट फ्रॉम द मशीन, राइट। These types of the machines render services for 24 hours, that is 24/7, right, continuously, पूरे दिन, पूरा हफ्ता और 365 डेज भी हम बोल सकते हैं। तो 24/7 365 डेज वो अवेलेबल है कंटिन्यूसली। हाँ, उसके समटाइम्स हैपन्स के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ती है। द एक्सपेंस ऑन द सैलरी, ट्रेनिंग एट्सेट्रा ऑफ द सेल्समैन डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो ये जो वेंडिंग मशीन है उसमें से प्रोडक्ट अपने आप निकलती है,
यू हैव टू इंसर्ट द कॉइन और करेंसी। तो यहाँ पर सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली मशीन बने हुए, सो वो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सो एट प्रेजेंट दिस टाइप्स ऑफ द मशीन्स आर सीन इन पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। सो हमने देखा है हमारी कंट्री में भी ऐसे नाउअडेज EVM है, अवेलेबल है इजीली। So this type of the machine was invented by Greek engineer and mathematician Alexandria Hero। ये नाम याद रखना, राइट। बहुत सालों पहले आउटसाइड ऑफ द कंट्री ये चालू हो गया था, हमारी कंट्री में अभी लॉन्च हुआ है। यानी आप पहले तो आज से 20-25 साल पहले भी इसमें जो भी प्रोडक्ट निकलती थी वो हमारी कंट्री में भी निकलती, लेकिन उसका यूज़ प्रॉपरली हमारी कंट्री में नहीं हुआ। लेकिन कीप इन माइंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो। सो सिंपल थिंग इज देयर, यहाँ जो EVM है वो अभी के हिसाब से देखो तो हमारी कंट्री में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चल रहे बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द लिटरेसी रेट, क्योंकि मोस्टली जो लोग इलिटरेट है उनको ये मशीन यूज़ करना नहीं आता और समटाइम्स उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। सो इसीलिए कई प्रोडक्ट्स और कई कंपनी ने ऐसे शुरू किया था ना, वो बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल अमूल ने भी ऐसा एक यूनिट चालू किया था, राइट, इन पार्लर्स, इन वन पार्लर। वहाँ पर जो पर्टिकुलर बोटल्स उसकी आती है, बॉटल मिल्क की होती है या वॉट एवर द पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ द लिक्विड थिंग्स आर देयर, वो इजीली अवेलेबल थी बॉटल के थ्रू, लेकिन उसमें कॉइन की जगह इंसर्ट करना था मोस्टली करेंसी नोट्स, तो कई बार प्रॉब्लम हुआ तो उसको बंद कर दिया। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले अमूल ने ही लॉन्च किया था, उसके बाद कई कंपनी से भी लॉन्च किया, अभी भी हमारी कंट्री में कई चले, बाहर की कंट्री में तो पॉपकॉर्न्स भी ऐसे मिलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ऐसे मशीन नहीं चल रहे, लेकिन उसका पर्टिकुलर जो आउटपुट आता है वो हमारी कंट्री में थोड़ा कम है। नाउअडेज इट इज़ इंक्रीज। आफ्टर दिस वन EVM के बाद हम देख रहे हैं, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो नाउअडेज टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग में जो टेलीफोन मार्केटिंग है वो अभी कम हो गया है, लेकिन टेलीविज़न मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग जो तीसरा आएगा वो इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।